Hi students, this is the last video of solid state. In this video we will cover two different topics. Number one is electrical properties of solid and number two is magnetic properties of solid. Okay, so let's begin the video. Solid on the basis of electrical properties are divided into three broad classes. These are conductors, semiconductors and insulators. Conductor means what? Conductors allow the passage of electric current through them. And insulators means what? They do not allow the passage of electric current through them. But semiconductors are intermediate between the conductors and the insulators because that means they normally do not allow the electric current to pass through them, but at certain condition they may allow to transfer the electrons through them. So कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है खुद में से. कंडक्टर जो होते हैं they allow electric current to pass through them. Insulator जो है they do not allow electric current to pass through them. But semiconductor क्या होता है? Semiconductor certain condition में electric current जो है वो फ्लो करवा सकता है खुद में से. So अभी हम लोग स्पेशली सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. So now let's see the conductivity range of the conductors. So the conductivity range of the conductor is 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Now ohm inverse meter inverse is the unit of conductivity. Okay, unit of conductivity. Next is what is the conductivity range of semiconductors? This is 10 to the power 4 to 10 to the power minus 6 ohm inverse meter inverse. And at last, what is the conductivity range of insulators? These are 10 to the power minus 10 to 10 to the power 20 ohm inverse meter inverse. Please remember the conductivity ranges. Okay. Now, using bands theory, we will try to understand what is semiconductor. See, this blue color part is known as valence band. What is valence band? There will be presence of electron in the band. वैलेंस बैंड का मतलब क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है. तो देखो ये जो है ये कंडक्टर के लिए है, लेफ्ट साइड में जो है ये कंडक्टर के लिए है. इसमें क्या दिया हुआ है? वैलेंस बैंड. और ऊपर में जो बैंड दिया हुआ है दिस इज व्हाट? दिस इज कंडक्शन बैंड. दिस इज कंडक्शन बैंड. याद रखो, अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे मूव कर सकता है तो ये कंडक्टर होगा. अभी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैपिंग्स क्या है उसको ध्यान से देखो. यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दीज आर ओवरलैपिंग, ठीक है. यहाँ देखो ओवरलैपिंग बैंड्स दिया हुआ है. तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप करता है सो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली पास फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. Therefore, the current will also pass in between two bands. So, the conductivity will be there. Okay? But in case of insulator, this is what? This is the field band, or I can say this is the valence band. And this is the conduction band. So, there is a huge gap between valence band and conduction band. And this gap is known as forbidden zone. That means the electron cannot jump from valence band to conduction band. Electron cannot jump from valence band to conduction band. Therefore, the current will not flow between the two bands. Therefore, in the insulator, current cannot flow. But in case of semiconductor, what is happening here? There is a small energy gap between the valence band and conduction band. सेमीकंडक्टर में क्या होगा? द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल. सो नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली सेमीकंडक्टर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बट आफ्टर सर्टेन कंडीशन दे मे अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास फ्रॉम वन बैंड टू अनदर बैंड. तो नॉर्मली क्या है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नॉर्मली पास नहीं होता है, लेकिन सर्टेन कंडीशन में हम लोग
पास करवा सकते हैं। तो दिस इज हाउ सेमीकंडक्टर वर्क्स। नाउ what are the types of semiconductor? Semiconductor are of two types. Number one is intrinsic semiconductor and number two is extrinsic semiconductor. Now what is intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor are pure semiconductor. Okay, so normally semiconductor जो है वो दो तरीके से उनमें कंडक्टिविटी क्रिएट हो सकता है। एक हो सकता है बाय हीटिंग, एक हो सकता है बाय हीटिंग और दूसरा हो सकता है बाय डोपिंग। ठीक है, वो हम लोग अभी समझेंगे हाउ सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एक तो हो सकता है हीट करने पर। हीट करने पर क्या होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पर मूव कर रहा है, ये होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें एडिशन कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोई इंप्योरिटी हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी आर एडिंग द इंप्योरिटीज। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे डोपिंग। डोपिंग मीन्स इंटेंशनली हम लोग इंप्योरिटी जब ऐड करेंगे उसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो डोपिंग नॉर्मली किस किस का किया जाता है? देखो, नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो ग्रुप 14 का होते हैं। नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर है वो ग्रुप 14 का होता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। आप किसी भी एक ग्रुप 14 एलिमेंट को ले लो, जैसे कि सिलिकॉन को ले लो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सो दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3s में 2 है और 3p में 2 है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। सो नॉर्मली सिलिकॉन के नीचे कौन है? सिलिकॉन के नीचे है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम नॉर्मली जो है दे एक्ट लाइक ए सेमीकंडक्टर। तो अगर ग्रुप 14 एलिमेंट को हम लोग डोप करेंगे, मान लो ग्रुप 13 एलिमेंट से या ग्रुप 15 एलिमेंट से, तो यहां कंडक्टिविटी क्रिएट होगा, जिसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब आफ्टर डोपिंग अगर कंडक्टिविटी क्रिएट होता है तो इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? नॉर्मली ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट है? देखो, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लेड है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे एक्ट लाइक ए सेमीकंडक्टर। मैंने क्या ले लिया? ग्रुप 13 एलिमेंट का कुछ एटम ले लिया। 13 एलिमेंट में एटम कौन कौन से होते हैं? बोरॉन होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, गैलियम होते हैं, इंडियम होते हैं एंड थेलियम होता है। नेक्स्ट मान लो ग्रुप 15 का कुछ एटम ले लिया। ग्रुप 15 में कौन कौन है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम से हम लोग क्या बना सकते हैं? सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और यहाँ देखो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा? नॉर्मली हमें ये पता है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट आफ्टर डोपिंग, डोपिंग करने से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो डोपिंग कैसे करेंगे? डोपिंग दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ग्रुप 13 एलिमेंट से डोपिंग कर सकते हैं। मतलब वी कैन ऐड एनी ग्रुप 13 एलिमेंट टू ग्रुप 14 एलिमेंट, दैट दीज आर सिलिकॉन और जर्मेनियम। नंबर 1 प्रोसेस। नंबर सेकंड प्रोसेस में क्या होगा? हम लोग ग्रुप 15 का कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रुप 13 का ऐड करने से क्या होगा और ग्रुप 15 का ऐड करने से क्या होगा? देखो यहाँ देखो, ठीक तरीके से देख लो। ग्रुप 14 का एलिमेंट जो है, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट? 4। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट? 3। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट? 5। तो यहाँ देखो, ग्रुप 15 एलिमेंट से अगर डोप करेंगे तो यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। मतलब ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा एक। कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। सो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन मीन्स व्हाट? नेगेटिव।
और सेकंड केस में देखो, अगर ग्रुप 13 एलिमेंट से ग्रुप 14 एलिमेंट को डॉप करते हैं तो 13 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 और 14 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। देयरफॉर अगर 13 एलिमेंट से डॉप करेंगे तो एक होल क्रिएट होगा, एक होल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, विच इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। So there are normally two types of semiconductor, actually two types of extrinsic semiconductor. One is N type, another is P type. Definition क्या बोल रहा है? When group 14 element is doped with group 15 element like phosphorus is called N type semiconductor. ठीक है, phosphorus जो है वो group 15 element का है और group 14 element को हम लोग group 15 element से अगर डॉप करेंगे तो यहाँ N type semiconductor फॉर्म होगा। ठीक है, the conductivity is due to the presence of what? Presence of negative charge or electrons. On the other hand, if we add group 13 element, if we add group 13 element to any group 14 element, then p-type semiconductor will form. Group 13 element, for example, हम लोगों ने यहाँ गैलियम ले लिया, and here the conductivity is due to the presence of positive holes. मतलब यहाँ एक होल क्रिएट होगा जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो दिस इज द सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 14 का है। ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, these are all what? These are all silicon atoms. Now what is the valence electron of the silicon atoms? Obviously 4, since they belong from group 14 elements. तो यहाँ देखो, मान लो ये सिलिकॉन में कंसीडर कर लिया, ये सिलिकॉन में कंसीडर कर लिया, तो इस सिलिकॉन के सराउंडिंग में और भी 4 सिलिकॉन है कि नहीं? इस सिलिकॉन के सराउंडिंग में और भी 4 सिलिकॉन है। तो ये जो सिलिकॉन है जो विच इज प्रेजेंट एट द मिडिल, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और हर एक सिलिकॉन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4 होगा। सो यहाँ देखो, इन बिटवीन द 2 सिलिकॉन एटम देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, यू कैन से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है इन बिटवीन द 2 सिलिकॉन एटम। जहां भी आप 2 सिलिकॉन देख लो, इन दोनों के बीच में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी अराइज नहीं होगा। बट देखो, इसमें हम लोगों ने क्या किया? डोपिंग किया। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया? डोपिंग किया। किससे डोपिंग किया? आर्सेनिक से डोपिंग किया। देखो यहाँ आर्सेनिक आ गया है। आर्सेनिक ग्रुप कौन सी ग्रुप का है? कौन सी ग्रुप का है? ग्रुप 15 का है। आर्सेनिक ग्रुप 15 का है। तो ग्रुप 15 का एक एलिमेंट से हम लोगों ने डॉप किया है, मींस ऐड किया है सिलिकॉन के साथ। तो देखो, आर्सेनिक का तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया है और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एंड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन देयर विल बी कंडक्टिविटी इन द सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे? वी विल ऐड एन एटम ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट का एटम ऐड करेंगे। तो ग्रुप 13 एलिमेंट का जो वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट? दिस इज 3। तो देखो, बोरॉन का जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कहाँ कहाँ है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पे, और एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ एक होल क्रिएट हुआ है, यहाँ जो है एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव होल, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। तो मेन पॉइंट क्या है? यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ कंडक्टिविटी अराइज कैसे होता है? समझो बात को। देखो, यहाँ जो होल है, होल के नाइबरिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। देखो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका नाइबरिंग में यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस फ्री पोजीशन पे जंप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी और एक होल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली इस पोजीशन पे अगर एक होल क्रिएट हुआ, यहाँ से भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस होल को ले लिया तो यहाँ भी और एक होल जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली इस पोजीशन से मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई कर लिया तो यहाँ भी और एक होल जनरेट हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक अगर होल क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इन दैट होल. सो अल्टीमेटली यहाँ इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. सो अगर एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यह कंडक्टिविटी अराइज होता है. सो दिस इज हाउ कंडक्टिविटी रिजल्ट्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ओके, so next we will study the magnetic properties of solid. See, based on magnetic properties, solid are divided or classified into 5 categories. Number one is paramagnetic substance. Number two is diamagnetic. Number three is ferromagnetic. Ferro, ferromagnetic substance. Number four is antiferromagnetic substance. Antiferromagnetic substance. And number five is ferrimagnetic. Substance. Okay? Now we will understand how the magnetic moment arise in any substance. किसी भी substance पे magnetic moment arise कैसे होता है ये पहले हमें समझेंगे. मान लो ये एक substance है, कोई भी substance हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, डायमैग्नेटिक हो सकता है, कोई भी एक substance हो सकता है. This is a solid substance. Let's take an example. तो किसी भी substance में क्या होता है, atoms होते हैं. किसी भी सब्सटेंस में क्या होगा, एटम्स होगा, और एटम्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, है कि नहीं. तो देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के वजह से यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होगा. किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन एटम. तो देखो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मूव कर सकता है. नंबर वन, it can move around the nucleus of the atom. ठीक है, this is the nucleus of the atom. The electrons normally what they do, they move around the nucleus of the atom. ठीक है, ये हो गया नंबर वन टाइप ऑफ रिवोल्यूशन. सेकेंड टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस. जैसे कि मान लो सोलर सिस्टम है, ये मान लो सन है. ठीक है, तो सन के सराउंडिंग में अर्थ भी घूमता है और अर्थ का ओन एक्सिस में भी रिवोल्यूशन होता है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द ओन एक्सिस. यहाँ देखो दो तरह का रिवोल्यूशन हो रहा है. नंबर वन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड नंबर टू इट इज रिवॉल्विंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. सो ड्यू टू दिस टू टाइप ऑफ रिवोल्यूशन द सब्सटेंस इज बिकमिंग मैग्नेटाइज्ड. ओके, ड्यू टू दिस टू टाइप ऑफ रिवोल्यूशन the magnetic property in a substance arises. Okay, so now we will try to understand what are the 5 types of magnetic substances. Number one is paramagnetic substances. Paramagnetic substances are attracted by magnetic fields. Normally क्या होगा, paramagnetic substances are attracted by magnetic fields. Why? Because they have unpaired electrons. For example, Fe3 plus. Fe3 plus is a paramagnetic substance. कैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा देखो, हम लोग देखेंगे. आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, चलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Now Fe3 plus का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, Fe3 plus, so number of electron will be 26 minus 3, that is 23. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा. कहाँ से रिमूव होगा, which one is the outermost orbital, 4s is the outermost orbital. 4s से एक रिमूव होगा और 3d से एक रिमूव होगा. तो क्या होगा, Fe3 plus का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and
3d5. So 3d5 is the outermost orbital. और 3d5 में देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5. So what is the number of unpaired electron? This is equal to 5. So अगर किसी भी substance में unpaired electron रहेगा, so the substance will become paramagnetic in nature. So due to the presence of 5 unpaired electrons, Fe3 plus is paramagnetic in nature. Similarly, oxygen molecule O2 is also paramagnetic in nature. अब molecular orbital theory किए हो क्लास 11 में. अब अगर molecular orbital theory करोगे ऑक्सीजन का, तो आपको यहाँ मिलेगा 2 unpaired electrons. So due to the presence of 2 unpaired electrons, O2 is also paramagnetic in nature. So this is the number 1 type of substance, that is paramagnetic substance. Next is diamagnetic substance. Paramagnetic substance का opposite है diamagnetic. Paramagnetic substance get attracted towards the magnetic field, but diamagnetic substance will be weakly repelled by the magnetic field. And paramagnetic substances have unpaired electrons, but diamagnetic substances that do not have any unpaired electrons. That means, how we will define diamagnetic substances? Diamagnetic substances are weakly repelled by the magnetic field and they do not have any unpaired electrons. Okay? So examples will be titanium dioxide, benzene, sodium chloride, etc. Sodium chloride में unpaired electron नहीं है. ठीक है? Next is ferromagnetic substances. Ferromagnetic, very very important. Ferromagnetic substance का मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें डोमेन थ्योरी को जानना पड़ेगा थोड़ा सा. डोमेन थ्योरी जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे. डोमेन थ्योरी में क्या होगा? मान लो ये एक सब्सटेंस है, मान लो दिस इज ए सब्सटेंस. ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर किसी भी सब्सटेंस, मान लो ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें देखो, इसमें ये सब्सटेंस में बहुत सारा क्या है? एटम्स है, और बहुत सारे एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो ये सब्सटेंस में क्या होता है? कुछ एटम मिलके एक मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है. मान लो दिस इज रीजन, और इस रीजन का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन पे है. मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? इस रीजन में जो कुछ एटम है, वो सारा एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक डायरेक्शन पे डायरेक्टेड है. यहाँ पर भी सेम, मान लो यहाँ जो रीजन है, यहाँ पर भी कुछ ग्रुप ऑफ एटम मिलके इनका मैग्नेटिक डाइपोल है इस डायरेक्शन पे. मान लो यहाँ और एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसका यहाँ का मैग्नेटिक डाइपोल्स इस डायरेक्शन पे है. मान लो यहाँ भी कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ का मैग्नेटिक डाइपोल्स इस डायरेक्शन पे है. सिमिलरली, तो क्या होगा जब हम लोग यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे? जब हम लोग यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? all the dipoles, all the respective dipoles will be aligned in a particular direction. यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है जो रीजन में डिवाइडेड है, मान लो ये रीजन का मैग्नेटिक डाइपोल इस डायरेक्शन पे है, इस रीजन का मैग्नेटिक डाइपोल और एक डायरेक्शन पे है, तो हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स है, तो सारा डाइपोल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएगा. एंड द सब्सटेंस विल बिकम ए परमानेंट मैग्नेट. ओके, definition देखो, the substance which are strongly attracted by the magnetic field and show permanent magnetism even when the magnetic field is removed. ठीक है, जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है सारा सेम डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएगा. ठीक है, all the magnetic dipoles will be aligned in a same direction and they will become a permanent magnet. ठीक है, देखो इसीलिए लिखा है once such substance material is magnetized, once such a material is magnetized, it remains magnetized permanently. यह परमानेंट मैग्नेटिक नेचर शो करेगा. तो यहाँ देखो ये जो डायरेक्शंस है, एरो दिया हुआ है, these are what? These are the direction of the magnetic dipoles. ठीक है, एग्जाम में आप एरोस दिखा देना. So the magnetic dipoles are aligned in a same direction. ठीक है, so this is what? These are ferromagnetic substances.
नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा? दे हैव जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कंपेंसेटरी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। मतलब क्या है? यहाँ देखो, यहाँ जो सब्सटेंस का अलाइनमेंट है, मींस सब्सटेंस में जो डायपोल्स है, डायपोल्स का जो अलाइनमेंट है, दिस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। देखो, दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड, here it is also directed downward, upward, downward. That means what? ये upward और डायरेक्ट डाउनवर्ड मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा? इनमें कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बचेगा। There won't be any magnetic moment left in the substance. So they are known as antiferromagnetic substances. Okay, examples are manganese oxide, iron oxide, nickel oxide. Examples. Please remember the examples nicely. Okay. Next is ferrimagnetic substances. Ferrimagnetic. See, these substances have a net dipole moment due to unequal parallel and anti-parallel alignment of magnetic moments. देखो, these are the magnetic moments. तो यहाँ क्या होगा? Unequally parallel and anti-parallel alignment शो करेगा। मान लो देखो, ये दो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एक हो गया नीचे डाउनवर्ड में, फिर से दो हो गए अपवर्ड डायरेक्शन में, नेक्स्ट एक हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो, यहाँ अनइक्वल नंबर में उनका डाइपोल मोमेंट्स अलाइन है। सो देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट इन द सब्सटेंस। सो these type of substances are known as ferrimagnetic substances. Examples will be Fe3O4. So these are the 5 different types of substances with respect to magnetic properties of a solid. Okay, that's about the chapter. So thank you so much for listening.